Narayan. In this video, I have taken up a question for discussion from Srimad Bhagavad Mahapuran from the first chapter itself, which also describes the importance, the glory, and the fruits of listening and reading the Bhagavad Puran in totality. So, this question appears within the dialogue of Rishi Narad and Bhakti Devi. So, these two meet in Vrindavan in Kalyug on earth, and Rishi Narad is saddened by the plight of Bhakti Devi because when she was in Gujarat, she was old, very old, but she regained her youth when she entered Vrindavan. And her two sons, Knowledge and Dispassion, Gyan and Vairagya, these two are still aged, though they are in Vrindavan. So, this is against the natural order of things, and this is disturbing Bhakti Devi. And seeing her plight, Rishi Narad, in short, describes the plight of all the creatures, all the jivas who inhabit the earth in Kali Yuga. What is the condition of them? And he says that every day the sins are so increasing, and the weight of earth has become heavier, is becoming heavier and heavier, and even Sheshanag is unable to bear the heavy weight of earth. So now the heavy weight of earth here is to be meant by the weight of the sins of the creatures that inhabit the earth. This is a metaphor. So the sins are the actual weight gainers. I mean, they are the ones who are actually heavy, not the earth per se. Adharma is very heavy, and dharma is very light. Adharma is very heavy for the earth to bear, and that is why the earth is heavy for Sheshanag himself, who bears the earth on his head. So, listening to this plight, Bhakti Devi puts up a question to Narad Muni that why did King Parikshit not kill Kali when he had a chance to? Because Kali submitted to King Parikshit and asked for mercy. So, why did he not kill him there and then? And the second question is, why is Hari, Narayana, not punishing those wicked souls? Is he not concerned about his devotees? Why is he not punishing those who are walking the path of adharma? So these two questions Bhakti Devi puts up to Narad Muni. And Narad Muni is glad to answer those. Narad Muni says that King Parikshit is a very wise man. He sees that King Parikshit actually foresaw what Kalyug can do. So according to King Parikshit, he says that what a person can achieve, was able to achieve in the earlier yugas by the means of asceticism, austere penances, meditation, yoga, and a lot of tap, the same fruit can be acquired in Kali Yuga by merely chanting the name of the gods, kirtan, bhajan. This is the sole criteria of liberation in Kali Yuga. So, only considering this one single aspect, the supremacy of this one single aspect, Kali Yuga is superior in this respect to all other yugas. So, that is why King Parikshit saved and did not kill Kali as a person. So, now here it's also a metaphor that killing Kali is not killing the evil man who is Kali, but killing Kali means killing the spirit of the times, that is called as Kalyug. Now, the spirit of the times is Kalyug, in which Adharma is supreme, Adharma reigns supreme. So, Adharma brings with it his family, covetousness, wrath, conceit, deceit, envy, falsehood. All these are the family members of Adharma. So here we have to understand this as a metaphor. Then the second question, Rishi Narad says that since the substance of all things have been eroded, Narayana is silently listening and watching what is happening in Kali Yuga. Because he says that if someone is to search for a true saint or a true rishi, there are so many false rishis who appear like rishis, but they are not so in their real sense. So that is why nobody is able to find out who is a true rishi. So there is a big confusion in Kalyug among people. So the substance of a true rishi has been deteriorated. So this is why Narayana is silently listening and watching to all these people who are living in Kalyug, all the karma of all the jivas. He's watching it silently.
So this is the answer of Rishi Narad in short. But he later on gives a lot of remedies for people who want to get rid of Kali, at least from their own house, from their own body, from their own family. They can. There are many ways of getting rid of Kali Yuga and the influence of Kali, the spirit of the time, killing Kali in their own mind, in their own heart, and then in their own family. And there are many ways, one of which is bhakti. Bhakti is a supreme way of getting rid of Kali and its influence. ये जो प्रश्न मैंने लिया है इस वीडियो में, मैं एक प्रश्न पर चर्चा करूंगा, वो मैंने भागवत पुराण के पहले चैप्टर से लिया है, जो जिसमें भागवत पुराण को पढ़ने की और सुनने की महिमा गाई है। वहां पर लिखी गई है कि उसका महात्म्य क्या है और उसका फल क्या है और उसको कैसे पढ़ना है। वह पूरा विस्तार पहले ही चैप्टर में भागवत पुराण में लिखा गया है। और ये जो प्रश्न है वो नारद मुनि और भक्ति देवी के बीच के संवाद में उत्पन्न होता है, और ये दोनों मिलते हैं कलयुग में ही, वृंदावन में, इस पृथ्वी पर ही मिलते हैं। और नारद मुनि भक्ति देवी की दशा देखकर बहुत ही चिंतित है, क्योंकि भक्ति देवी जब गुजरात में होती है तो वो बहुत ही वृद्ध वृद्ध होती है, और जैसे ही वह वृंदावन में पहुंचती है तो युवान हो जाती है। तो और उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति देवी के दो पुत्र, वो फिर भी वृद्ध ही है। तो उससे बहुत बड़ी चिंता भक्ति देवी को है कि मैं युवान हूँ और मेरे दो पुत्र वृद्ध है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो विपरीत परिस्थिति है। तो ये देख के नारद मुनि बहुत ही चिंतित हैं और उनको फिर वर्णन करते हैं कि कलयुग में सभी जीवों का क्या हाल है, गतिविधि क्या है सभी जीवों की। वो कहते हैं कि दिन ब दिन इतने पाप बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग दुष्कर्म और कुकर्म ही कर रहे हैं, अधर्म बहुत ही जोर पकड़े हुए हैं। तो इतना पाप बढ़ रहा है कि शेषनाग के लिए भी धरती बहुत बोझ बन गई है। जिन्होंने अपने सिर पे धारण किया है, शेषनाग ने अपने सिर पे धरती को धारण किया है, तो उनके लिए भी बहुत ही बड़ा बोझ बन गई है धरती माँ। और वो कहते हैं कि पृथ्वी देवी, जो धरती है, पृथ्वी देवी छूने योग्य तो नहीं है मगर देखने योग्य भी नहीं रही है, इतनी मलिन हो चुकी है। तो ये मलिन शब्द जो आता है वह पृथ्वी से लेकर नहीं है, पर पृथ्वी के अंदर जो जीव रहते हैं, जीव के जो पाप कर्म हैं, इसके कारण उसको मलिन कहा गया है। और ये जो बोझ है उसको हमें एक रूपक के तरीके से समझना चाहिए कि जो बोझ है वो सही में बोझ जो पाप है उसका बोझ है। जो पृथ्वी के भीतर जो जीव रह रहे हैं, जीव के पापों का जो बोझ है वो बहुत भारी है। तो उसके आधार पे ऐसा कहा गया है कि धरती बहुत ही भारी हो गई है शेषनाग के लिए। तो पापों का जो भारीपन है वो सबसे अधिक है, अधर्म बहुत ही भारी है, धर्म एकदम हल्का है। और धर्म तो पृथ्वी माँ को भी प्रिय है। अधर्म जो है उसको झेलना बहुत ही कठिन है, बहुत ही उसके लिए बहुत ही समस्या बढ़ जाती है अधर्म जब बढ़ जाता है। तो ये माध्यम से हमें ये रूपक की ओर से देखना चाहिए। तो ये सुन के भक्ति देवी उनको प्रश्न करती है कि अगर ऐसा ही होने वाला था, ऐसा ही है, तो परीक्षित राजा ने कली को मार क्यों नहीं दिया? जब ही कली उनके शरण में आए थे तो उनको क्यों क्षमा कर दिया, उनको छोड़ा क्यों? ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, वह कहती हैं कि अगर ऐसा है तो नारायण क्यों अधर्मियों को दंडित नहीं कर रहे हैं? क्या उनको अपनी भक्तों की चिंता नहीं है? ये प्रश्न भी अच्छा है, भक्ति देवी ने उनको कहा है, ऋषि नारद को पूछा है। तो ये दो प्रश्न वह पूछती है और फिर नारद मुनि उनको उत्तर देते हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है कि राजा परीक्षित ने कली को मारा क्यों नहीं, तो इस ये भी एक रूपक है। कली माने कली एक अत्याचारी पुरुष, पापी पुरुष, ऐसा नहीं मानना है। कली माने एक समय का जो प्रभाव होता है, और प्रभाव के साथ में जो उसके साथ में जो आते हैं उसके उसके अनुयायी। जैसे कलयुग में आप देखेंगे कि अधर्म बहुत ही मजबूत होता है, जोर शोर से वो आगे बढ़ता है, और अधर्म अपना परिवार लेकर आता है। असत्य है, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब अधर्म का परिवार है। तो ये बहुत ही परिपुष्ट होते हैं कलयुग में। तो यहाँ पर भक्ति देवी ने यही पूछा है कि परीक्षित राजा ने अगर कली को ही मार दिया होता तो कली के साथ जो कली का प्रभाव होता, समय का प्रभाव, वो भी चला गया होता।
ये प्रश्न हमें ये एक रूपक के रूप में देखना चाहिए। ऋषि नारद ने फिर उनको उत्तर दिया है कि जब से कृष्ण भगवान ने धरती से आगमन करके वैकुंठ की तरफ आगमन किया है, तभी से कलिकाल का आरंभ हो चुका है और तभी से ही सभी के साधनों में बाधा उत्पन्न करने वाली कली काल जो समय है, कली आ गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि बाधा उत्पन्न करने वाला कली को कहा गया है। अभी बाधा जो है वह अगर बुरे काम में बाधा है तो वो तो अच्छा ही है, वो भगवान की एक कृपा है। मगर अच्छे कार्यों में भी अगर बाधा आती है तो ये समय का प्रभाव माना जाना चाहिए। जैसे कि आपको अगर व्रत करना है, आपको अगर तप करना है, आपको कहीं दान करना है, आपको समय सर दान करना है, आपको मन में पता भी है कि इतने पैसे को दान करेंगे मगर पैसे आते ही नहीं है। आपको कोई यज्ञ करना है मगर उतने आपके पास पैसे नहीं है। आपको किसको अच्छा सा कुछ सेवा करनी है तो वो भी आपके पास समय भी नहीं होता है। तो ये जो अच्छे कामों में जो बाधाएँ आती हैं उसको कली का प्रभाव मानना चाहिए। ये समय का प्रभाव है, इससे तो कोई छूट ही नहीं सकता है। ये तो विधि का विधान ही माना जाना चाहिए। इसके उपाय भी शास्त्रों में है कि इससे कैसे छूटा जाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि जब से कृष्ण भगवान गए हैं तो ऐसा हो गया है और फिर आगे कहते हैं कि जैसे आजकल जो संत जो है, सभी का सार विलुप्त हो गया है, सभी वस्तुओं का सार विलुप्त हो गया है। तो जो संत अगर हमें कोई सच्चे संत की हमें परख नहीं है, तो हम उस तक पहुँच ही नहीं पाएँगे क्योंकि देखेंगे तो कोई भी संत बना घूम रहा है। जो संत के गुण होने चाहिए, तो ऐसे लोगों में जो गुण भी नहीं है, वो भी अपने आप को संत मानने लगे हैं और संत की पदवी उनको मिल गई है और पूरे विश्व में संत बने घूमते हैं। तो ऐसा हो गया है कि जो संतों का सार है, संतों का महत्व है, वो भी विलुप्त हो गया है। फिर वो कहते हैं कि तीर्थ स्थानों में जो ऐसे-ऐसे घोर अधर्म करने वाले लोग भी रहने लगे हैं, पापी लोग रहने लगे हैं। तो जिसके माध्यम से क्या हुआ है कि तीर्थों का जो महात्म्य है, वो भी गिर गया है। तो अगर आप देखेंगे कि तीर्थ को आज एक पिकनिक स्पॉट ही बना दिया गया है। लोग तीर्थ में जो जैसे जो भाव से जाना चाहिए, वो भाव से जाते ही नहीं हैं। वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए ही जाते हैं या सोशल मीडिया में कुछ अपलोड करने के लिए जाते हैं। तो ये जो भाव हो गया है, वो तीर्थों का विनाश ही है। अगर आप तीर्थों को अगर डेवलप करेंगे, पिकनिक स्पॉट बना देंगे, तो वो सुरा-सुंदरी का केंद्र बने बिना नहीं रहेगा। और आज देखेंगे कि कई तीर्थों के आसपास ही सुरा-सुंदरी का केंद्र ही बन गया है। तो ये जो विकास की परिभाषा है, ये सही नहीं है। ये धर्म के विरुद्ध है, ऐसी विकास की परिभाषा। फिर वो कहते हैं कि जो काम, क्रोध, मद और तृष्णा से तप रहे हैं, वो भी तप करने लगे हैं। तो फिर उसके चलते तप का जो महात्म्य है, वो गिर गया है। तो ये तप का महात्म्य भी एकदम गिर गया है। फिर वो आगे कहते हैं कि महान पंडित, आप ब्राह्मण भी ले सकते हैं, कोई विद्वान जो ब्राह्मण ना हो उसको भी विद्वान माना जाता है पंडित के रूप में। तो ऐसे महान पंडित भी केवल और केवल अपनी पत्नियों के साथ पशु के समान गमन करते हैं, रमण करते हैं। केवल उनको उनमें संतान उत्पन्न करने की ही कुशलता है। जो मोक्ष के साधन है, धर्म के साधन है, भक्ति के साधन है, उसमें वो सर्वथा अकुशल ही है। फिर वो कहते हैं कि ब्राह्मण इत्यादि जो है, ब्राह्मण खास करके लोभ और मोह और उसके चपेट में आकर जगह-जगह जहाँ भी जाए वहाँ पर भागवत की कथा करने लगते हैं। जिसको सुनाना नहीं चाहिए उसको भी भागवत सुना देते हैं। तो इसके चलते भागवत का जो महात्म्य है, जो कथाओं का महात्म्य है, शास्त्रों का महात्म्य है, वो गिर गया है। जो शास्त्रज्ञ नहीं है, जिसने वेद पढ़ा ही नहीं है, वो भी जाकर वेद पढ़ा रहे हैं, शास्त्र पढ़ा रहे हैं। तो इसके चलते क्या हुआ है कि शास्त्र की जो वैल्यू है, उसका जो सार है, वो भी नीचे गिरता जा रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो ये सब
बहुत ही विसंगति छा गई है। जो परिवार में वो कहते हैं कि वैष्णवता होनी चाहिए, अगर कोई वैष्णव परिवार है, उसके नीचे के जो वंशज होते हैं उसमें वैष्णवता ही नहीं आती है, तो फिर वह किसको पहचाने? कौन-सा परिवार वैष्णव कहा जाएगा? किसको हम वैष्णव कहेंगे जो विष्णु की उपासना करता हो? तो कोई समझ में ही नहीं रहा है कि कौन सच्चा वैष्णव है और कौन पाखंड है। ये पाखंड है बहुत ही सब जगह फैले हुए हैं, तीर्थों में फैले हुए हैं, कथाकारों में फैले हुए हैं, और मैं नाम नहीं लूँगा मगर बड़े-बड़े कथाकार भी जो है, जो अपने आप को भागवताचार्य कहते हैं, पूरे विश्व में कथा कर रहे हैं, भागवत पुराण की, शिव पुराण की, रामायण की, महाभारत की कथा भी कर रहे हैं। वह वो कर रहे हैं जो सबको चाहिए, जो कहना चाहिए, जो सही में कथा का उपदेश है, जो कथा का सार है, वो कहते ही नहीं है। तो इसीलिए फिर ये ज्ञान का स्तर है वो घटता ही जा रहा है, किसी को सच्चा ज्ञान मिल ही नहीं रहा है। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। तो ये जो प्रश्न है ये ऋषि नारद ने उत्तर दिया है कि इसके लिए ये सब समय का प्रभाव ही है, जिसके कारण नारायण स्वयं चुप बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि जीव क्या कर रहा है, सब जीव क्या कर रहे हैं कलयुग में। तो ये समय का प्रभाव ही मानना चाहिए। और आगे फिर वो कहते हैं कि जो राजा परीक्षित है, वह वैसे राजा है कि जैसे एक मधुमक्खी सभी फूलों से थोड़े-थोड़ा वो पोलन इकट्ठा करके फिर वह हनी बनाती है। तो वैसे ही राजा परीक्षित सब जगह जा जाकर जहाँ से ज्ञान मिलता है, वहाँ से वो ज्ञान ले लेते हैं और फिर अपने आप में वो धारण करते हैं। तो वे वैसे राजा है, और जब कली ने उनको शरण माँगी, वह क्षमा माँगने आया, उनके शरण में आ गया, तो राजा परीक्षित ने ये सोचा कि पहले के युगों में तप से, योग से, साधना से बहुत ही कठिन तप करना पड़ता था। तो उसके माध्यम से जो फल प्राप्त पहले के युगों में होता था, तो उसके कंपैरिज़न में अगर कलयुग में देखा जाए तो कलयुग में केवल और केवल कीर्तन और भजन से ही वह फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ऋषि किंग परीक्षित राजा परीक्षित ने ये सोचा कि कलयुग वैसे तो सारहीन है, सब्सटेंस के बिना ही है, कोई तत्व है ही नहीं कलयुग का। सारहीन होते हुए भी ये एक जो उसका लक्षण है कि भजन और कीर्तन से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है या नारायण मिल सकते हैं, तो वो एक लक्षण को देखते हुए ही राजा परीक्षित ने कली की हत्या नहीं की और उनको रहने दिया कि जो भी इसमें लोग आएँगे, कदाचित ये एक माध्यम से वह ऊपर उठ जाएँगे जल्दी से। तो ये एक लक्षण से उनको कलयुग को सारयुक्त कहा गया है, सारहीन नहीं। केवल केवल और केवल ये एक लक्षण से। बाकी महाभारत में और एक श्लोक है कि कलयुग को समय का एक एक्सक्रीटा माने मलमूत्र, समय का जो मलमूत्र होता है, वह कलयुग है। तो अभी आप इसको समझिए, आज के जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट बोलते हैं कि बहुत अमृत काल आया है, तो उनको एक पन्ना भी पढ़ा नहीं है शास्त्र का, और उनको पता भी नहीं है कि सतयुग कैसा था, राम राज्य कैसा था और राम राज्य में लोग क्या करते थे सुबह से शाम, और जीवन कैसा था। वो कुछ पढ़ा ही नहीं है और खाली ये इतने ही देखते हैं, थोड़ा इधर एक ब्रिज बन गया, एक मेट्रो बन गई तो बोलते हैं अमृत काल आ गया, और उनको और सुवर्ण काल भी लाना है। मगर ये यहाँ पर सामाजिक जो स्तर सभी का गिर रहा है, समाज में जो बहुत ही बड़ी विसंगति आई है, विडंबना है सभी के घरों में, वो उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। उस पर ध्यान केवल नारद मुनि का है, ऋषियों का उस पर ध्यान है, क्योंकि परिवार जो है वो समाज का स्तंभ है। अगर परिवार को तोड़ देंगे तो समाज अपने आप ही टूट जाएगा। जो आजकल बहुत ही कॉन्स्पिरेसीज़ चल रही है, योजनाएँ हैं, युक्ति है, कूटनीति चल रही है कि परिवार को ही तोड़ दें। ये बहुत ही बड़ी कूटनीति है, बहुत कम लोगों को समझ में आती है। नेताओं द्वारा ये चलाई जाती है, उद्योगपति द्वारा चलाई जाती है, टेलीविज़न मीडिया द्वारा चलाई जाती है, सोशल मीडिया द्वारा चलाई जाती है, और इन सब के चपेट में आकर फिर लोग फँस से जाते हैं और उनको लगता है कि यही अमृत काल है। और जबकि अमृत काल तो बहुत ही ऊपर है, जहाँ पे ऐसा समाज जहाँ पे कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से रहित हो, किसी में कुछ हो ही नहीं।
और सभी लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करें, वर्ण का पालन करें और सुंदर जीवन व्यतीत करें। किसी में कोई लालसा ना हो, किसी में कोई वैर ना हो, प्रेम भाव से रहे। जैसे राम राज्य में था, राम राज्य में एक वर्णन है कि लोगों को अगर जब गुस्सा भी आता था तो प्रभु श्री राम को देखते ही वह गुस्सा भी चला जाता था, अगर आता था तो। वैसे तो आता ही नहीं था, कोई बीमार ही नहीं होता था, कोई जल से ना मरता, कोई बिजली से ना मरता, कोई वायु से ना मरता, कोई कोई रोग से ना मरता, कोई रोग थे ही नहीं, और कोई कोई जानवर से भी ना मरता। ऐसा युग था, ऐसा राम राज्य था। 10,100 वर्ष तक राम भगवान ने यहाँ पर वह थे, और तभी तक ये ऐसा काल, सुंदर सुवर्ण काल उसको बोल सकते हैं कि था। और उसमें ऐसा था कि जो स्वप्न अगर आपको कोई आया है, अगर कोई मनुष्य को राम राज्य में रह रहा है, उसको कोई स्वप्न आया है, तो स्वप्न में जो इच्छा आई है वो भी पूरी होती थी। तो ऐसा सुंदर राम राज्य था। तो उसको देखते हुए, उसके साथ कंपैरिजन करके हुए फिर हमें कलयुग को देखना है कि क्या ये अमृत काल है या विष काल है। मैं तो इसको विष काल ही देखता हूँ, आगे विष ही विष है अगर ऐसे ही चले जाएंगे तो। ये सुंदर जो प्रश्न है उस पर चर्चा हमने की, और मैं आपको केवल 2 संकेत दूंगा कि आपको अगर कोई सच्चे गुरु की तलाश है या ढूंढ रहे हैं आप सच्चे गुरु, तो मैं 2 ही संकेत दूंगा। पहला तो वो कि वो गुरु गुरु ही नहीं है जो आपको गोविंद और ग्रंथ से दूर लेके जाए। वो गुरु किस काम का है? जो नारायण तक ना ले जाए, महादेव तक ना लेके जाए। गुरु वही है जो भगवान का साक्षात्कार करावे, और यही एक गुरु की बड़ी क्वालिटी है। दूसरा वह है, वह गुरु, ऐसा ही गुरु होना चाहिए जो शास्त्रोचित बात करे, शास्त्र से ना कुछ ऊपर ना कुछ नीचे, मगर शास्त्र का सार उसको पता हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मोपासना में लीन हो। और ऐसा गुरु जो स्वयं शास्त्र का पालन करता हो और शास्त्रोचित मर्यादा का उल्लंघन न करे, ऐसा ही उसको गुरु कहा जाता है। अगर कोई भी बड़े बड़े आचार्य है, अगर वो शास्त्र के विरुद्ध बात करते हैं तो वो गुरु हो ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं। क्योंकि भगवान ने जब जन्म लिया था, अवतीर्ण हुए थे, श्री राम, श्री कृष्ण, जो भी अलग अलग अवतार थे, उन्होंने सब ने शास्त्र की मर्यादा का पालन किया था। अगर भगवान स्वयं अवतार लेकर शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हैं, वह स्वयं कहते हैं कि शास्त्र के ऊपर तो मैं भी नहीं हूं। राम भगवान स्वयं कहते हैं नवधा भक्ति में कि गुरु की उपासना से ही पंच देवों की उपासना हो जाती है। तो ये 2 इंडिकेशन मैंने आपको दिए हैं। अगर आपको गुरु ढूंढने हैं तो ऐसे ही गुरु ढूंढिए जो गोविंद और शास्त्र, गोविंद और ग्रंथ से दूर नहीं बल्कि आपको उनके समीप लेके जाए। और वह गुरु जो शास्त्रोचित बात करे, उसी को गुरु कहा जाता है। अगर शास्त्र के विरुद्ध एक भी बात कर दी, वो गुरु गुरु नहीं है। और ये मेरा विश्वास है, मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको सच्चे गुरु मिल गए तो मानिए नारायण और महादेव से आप बहुत ही समीप है। अगर सच्चे गुरु के दर्शन हो गए, समझो नारायण जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि गुरु के बिना मोक्ष, गुरु के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है, असंभव। सो मैं यही अंत करता हूं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गोवर्धन मठ नाम की एक चैनल है, उसको मैं आप अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको संपूर्ण वैदिक वांग्मय का ज्ञान मिलेगा। और मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मैंने उनसे दीक्षा भी ली है। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वह गुरु ऐसे ही है जो ग्रंथ और गोविंद तक मुझे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सभी को, सभी उनके जो शिष्य हैं उनको ग्रंथ और गोविंद से और समीप लेके जाते हैं। और अगर हम सभी गुरु, गोविंद और ग्रंथ, ये तीनों से अगर हम दूरी बनाए रखेंगे तो हमारा विनाश ही होगा। गुरु, गोविंद और ग्रंथ, ये तीनों के समीप ही रहेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। शिव शंकर प्रलयंकर।